Hi kids, this is Rashmi Singh and I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th. Yes, this is number one channel for the students of class CBSE 9th and 10th. तो ये चैनल जो है अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. So I am Rashmi Singh, your educator, and I have done BTech in electrical engineering. I have got more than 8 years of experience and I have been teaching social science to the students of CBSE boards. And यहाँ पर भी मैं class 9th और 10th को social science पढ़ाती हूँ. And I have mentored students for CBSE, ICSE boards, and also I have mentored students for NTSC and IESO and various other Olympiads. So this is a profile link where you can visit and know a bit more about me kids, okay? And RSYT is my code. So first of all, I would like to welcome all of you to the first day of the class. Yes, after a huge demand from the students of class 9, I have started this one chapter, one day series for class 9 as well. Already this series was running for the students of class 10. Class 10. Now I have started it for class 9 also. So why do you need to join an academy? If you join an academy, basically you are going to get a lot many features or lot many things on an academy, which is you are going to get the daily life classes, live test होता है वहाँ पे, पूरा syllabus structured way में cover होता है और आपको सारे recorded lectures का unlimited access मिलता है. एक जो live पढ़ने का मज़ा है ना ऑनलाइन, वो कुछ और ही होता है बच्चों. यहाँ पे टीचर के साथ आपका बहुत better interaction होता है. You can get your doubts clear, you can engage in discussions as well. Okay. So live classes are taken by the top educators and in just one subscription all the subjects get covered. Okay, so yes, you have heard it right. एक सब्सक्रिप्शन लोगे और हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराएंगे. मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, फ्रेंच लैंग्वेज, संस्कृत, एवरीथिंग इज ऑन अस. ओके, तो हम सारी तैयारी आपको कराने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए और क्लास 9th के लिए. You just need to download this Unacademy Learning app, which is actually the most trending app nowadays. आपको ये गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. क्लास 9 के स्टूडेंट हो, यहाँ पे मैनेज गोल में सीबीएसई क्लास 9 सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो बच्चों, and then you can subscribe for 4 year, 3 year, 2 year or 1 year. I hope you all have heard the news that which was released by WHO today only, that corona is going to stay with us for another 2 years. So I would suggest frankly and honestly that you should go for 2 year, 3 year or 4 year subscription, and if you use the code RSYT you will get a small discount of 10%. Okay, तो आपको 10% का discount मिल जाएगा RSYT code use करके. And now you can pay in parts also, in EMI also, so there are various options available. Okay, so now without any delay kids, let us start our chapter, which is the first chapter of history, French Revolution. Okay, तो सबसे पहले तो ये बता दो कि आप में से कौन कौन से बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है और इस सेशन के अंदर ऐसा क्या अलग पढ़ाने वाली हूँ मैं. ओके, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं बच्चों कि क्लास 9 और 10 के अंदर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, राइट. उसके पहले क्लास 6 में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था, क्लास 7 में आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा था, क्लास 8 में आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा था. Now in class 9th and 10th you get to study the modern history of the world, and the modern history starts with the first most important event, that is French Revolution. Now in this session you will be going to know that why French Revolution is so important. Okay, and obviously the whole topic which is there in your NCERT chapter is going to get covered, okay, in just one lecture, because this is one chapter, वन डे सीरीज. ओके, तो आज ही हम पूरा का पूरा जो सेशन है वो कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, सो जैसे ही आप फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड सुनते हो तो ये तो समझ में आ जाता है कि ये रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस में हुआ होगा, राइट. बट व्हाट इज रेवोल्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म. ओके, अगर ये टर्म नहीं समझ आया तो चैप्टर जो है उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे. ठीक है, जो चैप्टर का जो एक सेंट्रल आइडिया है ना वो नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये जो टर्म है रेवोल्यूशन वो समझना ज़रूरी है. ओके,
मैं समझाऊंगी वो। एंड इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th century, the outbreak of revolution, France abolishes monarchy, then after the monarchy, what was the role of women in the revolution, and how the slavery abolished, and what was revolution in the everyday life. Okay, तो ये सारे aspects जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें एक बार सभी के सभी। लेट्स क्रैक इट लिख दो, ठीक है। लेट्स क्रैक इट मंत्रा का जाप कर लेते हैं, एंड देन लेट अस जस्ट किक स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट टर्म है बेटा रेवोल्यूशन। ओके, अब एक्चुअली में ये वर्ड को समझने के लिए आपको इंग्लिश के और दो वर्ड्स को समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। सो द अदर टू वर्ड्स आर चेंज, transform. So we have got three words. One is change, another is transform, and the third word is revolution. Okay. All right. So we have written all the three words. Now when you hear these three words, you can understand the intensity of the change which is going on in all these three words, right? अगर change मैंने बोला है तो जो intensity है कोई भी बदलाव का वो कम होगा। ट्रांसफॉर्म बोला है तो उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे बदलाव की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और रेवोल्यूशन जब हम बोलते हैं तो इट ब्रिंग्स अ सी चेंज। ओके, whenever there is a very big change, the change which is as big as the sea, then we call it revolution. ठीक है, तो रेवोल्यूशन का डेफिनेशन देखोगे अगर आप गूगल पे जा करके तो आपको क्या मिलेगा? इट इज़ अ forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. So basically revolution का मतलब है existing system को हटा करके बिल्कुल नया system ले आ करके वहाँ पे रख देना, existing system को replace कर देना एक new system से, ठीक है। तो रेवोल्यूशन इतना बड़ा सिस्टम है, उसको चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, अगर फ्रांस की मैं बात करूं 18th सेंचुरी के आसपास, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी इट वाज अ वेरी अनजस्ट गवर्नमेंट। ओके, इक्वालिटी का नामो निशान नहीं था। लोगों की जो एवरीडे जो कॉमन लोगों की लाइफ थी वो दिन पर दिन पैथेटिक होती जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था हर लेवल पे, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट हाउ द होल सिस्टम गेट ट्रांसफॉर्म्ड, हाउ द होल सिस्टम गॉट रिवर्स्ड, कैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटा दिया, उसे ही हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा दिया गया और नया गवर्नमेंट आ जाता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन विच मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड इज दैट हाउ वुड यू चेंज एन अनजस्ट गवर्नमेंट? So basically this whole change started with a small place in France which is called Paris, ठीक है। तो Paris revolution seems to have begun by an angry mob. Okay, so there was a group of people who went to the Bastille, and then the whole revolution started. So your chapter in NCERT also starts with Bastille. Okay, now what is Bastille? I will tell you. सी बैस्टाइल जो है वो एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, ठीक है। फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब एक तरीके का फोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे रेड फोर्ट है। ओके, सो रेड फोर्ट हैज़ गॉट सम पॉलिटिकल सिंबल, इसीलिए हर साल जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ फहराया जाता है? रेड फोर्ट पे फहराया जाता है, ठीक है। ऐसा ही बैस्टाइल का भी एक सिंबल था। बैस्टाइल वॉज ऑल्सो होल्डिंग सम इम्पॉर्टेंस एज फार एज द पावर ऑफ किंग वॉज कंसर्न्ड, ठीक है। तो पेरिस के अंदर ही बैस्टाइल फोर्ट है, और जब भी लोग कोई धरना करते हैं तो वो क्या करते हैं? पब्लिक की कोई भी जो पब्लिक का सिंबल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये तो आप सबने कई बार पढ़ा भी है, मीडिया में भी देखते हो कि जब जनता के अंदर गुस्सा होता है तो वो क्या करती है? जो पब्लिक की बिलोंगिंग्स हैं, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, राइट। ये तो भैया बहुत ही कॉमन बात है, ऑब्जर्वेशन की बात है। तो पेरिस के अंदर क्या हुआ? देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु जस्ट started moving in militias, who started moving in groups, and they just went and started
स्टार्टेड स्टॉर्मिंग द फोर्ट, ठीक है, एक पूरा का पूरा जो किला है उसको डिस्ट्रॉय करने लग गया। उसी की फोटो यहाँ पर दी हुई है बच्चों। हियर यू कैन सी दैट दिस फेलो, जिसके यहाँ पे 1 मार्क लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द मॉब लीडर्स हु ट्रायम्फेंटली डिस्प्लेज द कीज ऑफ द बेस्टाइल। उसने जो बेस्टाइल की चाबियां हैं उसको हाथ में पकड़ रखी है। नाउ द फिगर नंबर 2, you can see that although they were in search of गन पाउडर, जो ये पूरी की पूरी मॉब है, ये मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़, कॉमन लोगों की भीड़। ये पूरी की पूरी जो मॉब है ये एक्चुअली में क्या ढूंढ रही है, दे आर सर्चिंग फॉर द गन पाउडर एंड फायर आर्म्स, बट एक्चुअली व्हेन दे मूव्ड इनटू द बैस्टाइल प्रिजन दे जस्ट लूटेड एवरीथिंग दे सॉ ओवर देयर, ठीक है, जो भी उनको हाथ लगा वो सब लेकर आ गए। एज यू कैन सी ओवर देयर, कैन यू गेस व्हाट आर दीज आर प्लेट्स, ठीक है, तो प्लेट्स मिला, प्लेट्स उठा के ले आए। एंड नाउ दिस थर्ड पर्सन, दिस थर्ड फेलो, एज यू कैन सी ओवर हियर, ही इज बेसिकली ड्रैगिंग द रॉयल फ्लैग, ठीक है, तो जो राजा महाराजाओं के टाइम का जो फ्लैग था उसको ये ड्रैग कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग चेंज, इतना बड़ा चेंज आया कैसे? ये सारे के सारे जो कॉमन लोग हैं इनको आइडिया कहाँ से आया कि भैया अब हमें क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है, रिवॉल्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो इवेंट है ये कब हुआ है, 14 जुलाई 1789 को हुआ है, जब 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया। लोगों ने अपना एक मिलिट्री बना लिया। नाउ हियर यू कैन सी द टर्म पीपल्स, ठीक है, अगर इंग्लिश में हम पीपल्स लिखते हैं तो कई बार वो गलत ही हो जाता है, क्योंकि पीपल तो खुद ही प्लूरल है, तो उसमें एस क्यों लगाना। लेकिन बच्चों यहाँ पर पीपल्स का मतलब है द ग्रुप ऑफ पीपल वर ऑल्सो बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल कैटेगरी, सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका प्लूरल है, इसीलिए इसको पीपल्स कहा जा रहा है, ठीक है। और मिलिशिया का मतलब होता है एक तरीके से मिलिट्री जैसा फॉर्म कर लेना, एज यू कैन सी ओवर हियर कि सबके हाथ में क्या है, कुछ ना कुछ आर्म्स हैं। एंड बैस्टाइल हियर स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। एज आई हैव टोल्ड यू, हर बिल्डिंग की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। ताजमहल की क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द सिंबल ऑफ लव, राइट। रेड फोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर आर इंडियंस, राइट। ऐसे ही बैस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस थी, इट वॉज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक का मतलब होता है डिक्टेटोरियल पावर, ठीक है, कि राजा के पास सारे पावर हैं, लॉ बनाने के, लॉ एग्जीक्यूट करने के, किसी को भी पनिश करने के। तो ही वॉज हैविंग द एब्सोल्यूट पावर विद इन हिमसेल्फ, उसका ये क्या है, सिंबल है बैस्टाइल। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets. ओके, तो इसको स्टॉर्म किया लोगों ने और इसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे मार्केट में ले जा करके बेचना शुरू कर दिया एज अ सुवेनिर। अगर किसी को रखना है, सुवेनिर का मतलब होता है फॉर मेमोरी, किसी को अपने घर में सजा के रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा इवेंट हो गया 14 जुलाई 1789 को, और इतने सारे लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया, जा करके पूरी आफत मचा दी, ठीक है, तबाही मचा दी पेरिस के अंदर बैस्टाइल में। ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों, यही हम पूरी की पूरी कहानी जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सच में बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ गिवन द बेस्ट लेगेसीज ऑफ द बेस्ट लेगेसीज टू द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, ठीक है, वाई डू यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज दैट कि इस रेवोल्यूशन को कॉमन लोगों ने किया था, ठीक है, कॉमन पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। दो द इवेंट वॉज वेरी ब्लडी इवेंट, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, खून बहते हैं, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता था कि इस टाइम पे फ्रांस के रोड्स पे आपको लोगों की जो डेड बॉडीज़ है वो जैसे जानवरों की डेड बॉडी होती है, कारकैसेस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे दिखती थी। इतना ब्लड शेड हुआ, ओके, बट स्टिल वी स्टडी दिस रेवोल्यूशन। वाई? बिकॉज दिस वॉज ओनली रेवोल्यूशन विच इंस्पायर्ड पीपल, विच बेसिकली गिव करेज टू द पीपल टू क्वेश्चन देयर अथॉरिटीज़, ठीक है। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। इसके पहले भी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है, ये रेवोल्यूशन 1789 में हुआ है। 1785 में द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका भी होता है, बट उसको इतना नहीं पढ़ाया जाता मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है।
वाई? बिकॉज फ्रांस में कॉमन लोगों ने इतना बड़ा बदलाव किया, ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। मेन आइडिया क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ अगर होगी किसी भी सोसाइटी के अंदर तो डेफिनेटली कभी ना कभी विद्रोह होगा, ठीक है। वाई इट मैटर्स? बिकॉज थ्रू आउट हिस्ट्री इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज हैव एट टाइम लेट्स पीपल टू रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट्स, एंड दिस इज द सेम केस इन फ्रांस ऑल्सो। बहुत सारे टर्म्स ये आपको देखने को मिलेंगे। So yes, it was very significant as far as modern history is concerned because common लोगों ने courage दिखाया और एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज किया। सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, चेंज भी कर दिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि किसका मैसेज दिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का मैसेज दिया। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी दिस chapter, study this revolution, and in fact all the students across the world study this revolution, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। So what was the cause of the revolution? So we are going to study the political cause, social cause, economic cause and intellectual cause one by one. Okay, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सोशल कॉज से। फ्रांस के अंदर बच्चों 15th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक एक सोशल ऑर्डर का सिस्टम चलता था। जैसे अपने इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम एक वहाँ पे भी सोसाइटी के अंदर थी, जिसे कहा जाता था ओल्ड रेजीम, ठीक है, या फिर एंशियन रेजीम भी इसे कहा जाता था। अब आप लोग बोलोगे कि 15th सेंचुरी से ये सिस्टम चला आ रहा था, तो 18th सेंचुरी में अचानक से लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई इस सिस्टम से, राइट? सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि सेंचुरीज कैसे काउंट होती है। लाइक अभी हमारा जो ईयर है वो 2020 है, विच इज 21st सेंचुरी, ठीक है। जब वर्ल्ड के अंदर पहले 100 ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे ना, तब उसे फर्स्ट सेंचुरी कहा गया होगा, राइट? तो इसीलिए पूरा एक साल जब बीत जाता है उसके बाद इसमें आगे का जो ईयर है उसमें +1 करोगे तब आपको वो सेंचुरी मिलेगी, ठीक है। तो हमारा 15th सेंचुरी कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1401 से, एंड 18th सेंचुरी कब तक रहेगा आपका? 1799 तक, ठीक है। एक्चुअली दिस सिस्टम एग्जिस्टेड टिल 1789, ओके। तो 1401 से ये सिस्टम चला आ रहा था, तो इतनी क्या आफत हो गई कि तुमको 1789 में रेवोल्यूशन करना पड़ा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली देखो, जो फ्रांस की सोसाइटी है ना, वो 3 डिस्प्रपोर्शनेट अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट क्लास वॉज क्लर्जी, द सेकेंड क्लास और द सेकेंड स्टेट व नोबिलिटी, एंड द थर्ड स्टेट व, as you can guess in the picture, is the common people, rest of the population, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? as you can see in this picture, there is a person जिसके सामने 3rd नंबर लगाया गया है। he is carrying 2 people on his back, ठीक है। this person belongs to the first state and this person with a huge cap, feather cap, belongs to the second state. So this caricature basically tells you that he is carrying the load of both the people. So यहाँ पे जो 3rd स्टेट है बेटा, वो 1st स्टेट और 2nd स्टेट का पूरा लोड कैरी करता था, पूरा बर्डन कैरी करता था। कौन सा बर्डन? इकोनॉमिक बर्डन, ठीक है। और इनको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, इल ट्रीटमेंट मिलता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, और सारा का सारा टैक्स भी क्या कर रहे थे? They were only paying the taxes. So here's the structure, as you can see that जो first state है वो 0.5% of the population है, second state is 1.5% of the population, and third state is 98% of the population. Okay, sorry, the first state and second state actually paid no taxes, they were exempted from the taxes. Okay, on the other hand, third state paid all the taxes. Okay, first state consisted of all the high priest of the church and ऑल द फादर्स ऑफ द चर्च, क्लर्जी जिनको कहा जाता था। सेकेंड स्टेट में सारे जो रॉयल ब्लड के लोग होते थे, राजा महाराजाओं के खानदान के जो लोग होते थे, वो सेकेंड स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। थर्ड स्टेट में बहुत मिक्स ऑफ पीपल थे, ठीक है। देयर वर रिच बर्जियर्स, बिजनेसमैन ऑल्सो, देयर वर स्कॉलर्स ऑल्सो, फिलोसफर्स, टीचर्स, लॉयर्स, peasants, farmers, big landowners, everyone was there in the third state, and they all paid taxes to the first state and second state. Now the question arises, why clergy was given the first state wala status?
राजा महाराजाओं या नोबिलिटी को, रॉयल फैमिली के लोगों को फर्स्ट स्टेट का स्टेटस क्यों नहीं दिया? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट जो फादर होते थे, जो चर्च के फादर हुए या प्रीस्ट होते थे, उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था, इसलिए उनका स्टेटस जो है वो हमेशा से सोसाइटी के अंदर काफ़ी ऊपर रखा जाता था. ओके, सो यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज सो डिस्क्रिमिनेटरी. इसीलिए रूट कॉज जो है वो यही है कि भैया सोसाइटी जो है वो क्लासेस में डिवाइडेड है. ओके, एंड टैक्सेस कौन पे कर रहा है? जो सबसे नीचे वाले, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग सारा का सारा टैक्स पे कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट तो बस एंजॉय कर रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द मेन हिस्ट्री मेकर्स. ठीक है, फ्रांस के अंदर बेटा लुई 16 एंड मैरी एंटोनियट, ये दोनों राजा और रानी थे. ठीक है, तो लुई 16 जो है वो एक्चुअली में राजा जब बना तो काफ़ी कम उम्र के थे वो. 1754 में ये बॉर्न होते हैं, 1774 में ही असेंडेड द थ्रोन. सो ही वॉज merely 20 years old and he was not at all prepared to take the responsibility of the king. It was just because of some accidental demise of his grandfather that he was forced to rent the France. ठीक है, तो उसके ऊपर इसको ये रूल चाहिए नहीं था, उसको ये स्टेटस, ये राजगद्दी चाहिए नहीं थी, बट उसको मिल गई थी. ठीक है, now here you would see that ये जो राजा है हमारा लुई 16, he has got a very good heart. Okay, he wanted to work for the people, but actually he got very easily bored with the affairs of the state. उसको जो भी पॉलिटिक्स थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. इनफैक्ट उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, हंटिंग में. एंड देन ही यूज टू लव विद, वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर वाली क्वालिटी थी इनके अंदर. ठीक है, ही वॉज स्किल्ड इन द सेवरल ट्रेड्स इंक्लूडिंग लॉक मेकिंग, मेटल वर्किंग, ब्रिकलिंग. ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छे थे और ये क्या चाहते थे कि मैं यही सब काम करूं. ठीक है, लेकिन लुई 16 जो है उनको राजा बना दिया जाता है. अब राजा बनाने के बाद दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है दैट ही वॉज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन मेकर. ही वॉज सर्टेनली नॉट अ वेरी गुड लीडर. ही गेट यूज टू स्वेड बाई एनी पर्सन ही यूज टू टॉक. जैसे मुझसे बात किया, मैंने कहा भाई लुई 16 जी ये चीज़ सही है, ये कर लो, ही वुड अग्री. ठीक है, यही कर लेते हैं. दूसरे पर्सन से बात किया, किसी ने भी उसको कुछ भी एडवाइस दे दी. वैसे भी यहाँ इनके जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत अच्छा एडवाइस नहीं देते थे और वो मान लेते थे. ठीक है, so that was the root cause why this whole revolution happened, because the leadership was not good. Okay, now comes the queen Mary Antoinette. She was just 1 year younger to him, and Mary Antoinette जो है वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. ओके, एंड मैरी एंटोनियट की शादी लुई 16 के साथ हुई थी अंडर यू कैन से अंडर अ पॉलिटिकल डील. इट वाज लाइक अ पॉलिटिकल डील था ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में कि अब हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि भाई ऑस्ट्रिया की जो बेटी है वो जा रही है फ्रांस में बहू बन के. ठीक है, तो जो हमारी मैरी एंटोनियट थी काफ़ी लाइट हार्टेड थी, चार्मिंग थी, बट शी वॉज ऑल्सो अनपॉपुलर. ओके, फर्स्ट ये कि भाई ऑस्ट्रिया जो है उनसे ऑलरेडी काफ़ी लोगों के दिल में खटाव था. ठीक है, इट्स लाइक नाउ आई डोंट टेक दिस एग्जाम्पल वेरी सीरियसली, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से कोई अगर बहुत हाइयर पोस्ट की कोई इंडिया का कोई पर्सन हो, उसकी शादी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बेटी से हो जाएगी, तो शायद इंडियंस भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग दिस कि हाँ ये 100% सही है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. ओके, तो वो एक रीज़न था वाई मैरी एंटोनियट को लोग पसंद नहीं करते थे. ठीक है, क्योंकि भाई दुश्मन देश से तुम आई हो. ओके, तो ऐसा लोगों के अंदर फीलिंग था. एंड ऑल्सो ये किंग को खुद भी बहुत ज़्यादा, अपने हस्बैंड को यानी लुई 16 को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती थी. शी ऑलवेज यूज टू रेफर हिम एज द पुअर मैन. ओके, एंड शी वॉज वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स द पीपल. भैया घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, फ्रांस के लोग जो हैं इतने दुखी हैं, परेशान हैं. शी नेवर सिंपथाइज with the people of France, and on the other hand she used to have वेरी लग्जूरियस लाइफ. बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती थी, यहाँ वहाँ खर्च करती थी. और जो एक कॉमन रॉयल कोड होता है कि आपको इस तरीके का ड्रेसेस पहनना है, फॉर्मल चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, शी डज़ नॉट यूज़ टू फॉलो एनी ऑफ दीज रूल्स बिकॉज शी वॉज वेरी फ्री स्पिरिटेड. ठीक है,
तो उसको जो रॉयलिटीज जो थी वो भी उसको नहीं पसंद करती थी, कॉमन लोग भी नहीं पसंद करते थे, ठीक है। तो पीपल डिड नॉट हैव फेथ इन देयर रूलर, ओके, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द causes. Now, what was the political cause? When Louis XVI got the throne, he found that the treasury is completely empty. कि हमारे जो पहले के राजा रहे हैं उन्होंने भाई अगल बगल के झगड़े सुलझाने में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. इनफैक्ट इनके यहाँ का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था वो आकर के इनको एडवाइस भी करता है कि आप बजट क्यों नहीं बना लेते हो, ठीक है. बट लुई 16 रिफ्यूज टू फॉलो हिज एडवाइस. एंड एक्चुअली जो हमारा फ्रांस है उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए. देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. अमेरिका और फ्रांस का कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था, ठीक है. तो ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए अमेरिका को काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो खर्च कर दिए गए थे, लोन भी लिया गया था. और ये लोन जो है 3 बिलियन लिवर्स का हो गया था. 2 बिलियन लिवर्स का लोन लिया गया था, 1 बिलियन लिवर का इंटरेस्ट लग गया था, ठीक है. तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो फ्रांस है वो डेट के अंदर दबा हुआ था. देयर वॉज रियली अ वेरी सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है. फाइनेंशियल क्राइसिस है तो राजा होने के नाते आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है. सो नाउ कम्स द इकोनॉमिक कॉज. अब पॉपुलेशन जो है वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1789 में, ओके. देयर वर नो फूड ग्रेन्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. फूड सिक्योरिटी नहीं है. लेबरर्स जो हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है चीज़ों का, ओके. एंड एक लोफ ऑफ ब्रेड जो है ना वो 1 वीक की सैलरी के बराबर हो गया था. मतलब कोई पर्सन है उसकी 1 वीक की सैलरी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ ब्रेड. सो हाउ वुड अ पर्सन सर्वाइव? तो देयर वाज द क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कॉमन मैन. तो एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी. सब्सिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वाइव करना. सर्वाइव करने के लिए भी क्राइसिस आ गई थी. बेसिक नेसेसिटी जो है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे लोग. सो पीपल वर फिल्ड विद, कंप्लीटली फिल्ड विद एंगर, ठीक है. बहुत गुस्सा भरा हुआ था. कभी भी ये गुस्सा जो है ठप करके बाहर आ सकता था, ठीक है. नाउ वी हैव सीन द प्रॉब्लम्स, राइट. क्या क्या प्रॉब्लम देख लिया. सोसाइटी जो है वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटली स्ट्रक्चर में है. देन वी हैव सीन कि भैया इतना सारा लोन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है. ट्रेजरी बिल्कुल खाली है. लोग जो हैं वो रो रहे हैं, उनको ब्रेड भी नसीब नहीं हो रहा है. और राजा जो है उसको तो भैया लॉक मेकिंग में और आर्टिस्ट्री में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है. अदर देन दैट, पीपल एट दिस टाइम, स्पेशली द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, जो कि बर्जियर्स थे, जो कि बिजनेसमैन थे, वो लोग क्या करते हैं बच्चों? आप देखोगे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट आ रहा है. वाई? बिकॉज दे आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. दे वो बेसिकली ट्रेडर्स थे. वो दुनिया में हर जगह घूमते थे, तो हर जगह से आइडियाज़ एक्सेप्ट करते थे. उनमें से ही कुछ फिलोसोफर्स हुए, जॉन लॉक, रूजे एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है. तो इन लोगों की अलग अलग बुक्स भी हैं. जॉन लॉक की बुक है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. रूजे की बुक है बच्चों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू की बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ. इन तीनों ने बहुत ही ऐसे आइडियाज़ दिए, रेवोल्यूशनरी आइडिया दिए फ्रांस को, कि लोगों का दिमाग खुल गया. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, ओके. सो दिस वाज द इंटेलेक्चुअल कॉज. So what was the idea given by John Locke? He said that we need not to follow the doctrine of divine. Doctrine of divine क्या है? एक तरीके का thought है. Doctrine का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है. Thought क्या है? A monarch derives the right to rule directly from the will of the god. भगवान की मर्जी से राजा हमेशा रूल करेगा, ठीक है. तो जॉन लॉक ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. भगवान की मर्जी का कोई सवाल ही नहीं है. People started questioning the authority, the legitimacy of all these irrational thoughts. तो उन्होंने क्या कहा जॉन लॉक ने कि नहीं भैया, 2 ट्रीटीज होनी चाहिए. गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रीटी होना चाहिए. गवर्नमेंट और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है. या जो भी रूलर है, रूलर और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक तरीके का ट्रीटी होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, ठीक है. कोई भी ऐसे ही रूल नहीं कर सकता है. रूजे ने क्या कहा? देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एक फिक्स टर्म के लिए होता है. ये तो शायद आप सबको पता होगा, राइट. तो इन्होंने क्या कहा?
एक्चुअली अभी जो मॉडर्न हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसे ही काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है 5 साल का। इंडिया के अंदर देखो तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का और पीपल का। अगर तुम अच्छे से नहीं काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट इलेक्शन में हम आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो यही बात जो है वो रूजे कह रहे थे अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहे थे कि पावर का डिविजन होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए कि राजा ही है जो लेजिस्लेचर का भी काम करेगा, लॉ भी बना लेगा, एग्जीक्यूट भी कर देगा, सज़ा भी दे देगा। तो दिस इज़ नॉट राइट। द पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर पर्सन, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। पावर जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए। ये इन्होंने किस में कहा था? इनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ में, ठीक है। इनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इनकी बुक थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑथर याद रखो, हमेशा आता है एग्जाम में, ओके। नाउ आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। 3 बिलियन लिवर का लोन। लिवर क्या है बेटा? एक करेंसी है फ्रांस की जो एक्चुअली बाद में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। इतना सारा लोन है, क्या करें? इतना सारा कर्ज में डूबे हुए हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि राजा के जो एडवाइजर्स थे दे वर नॉट गुड एट ऑल, ओके। वो एक तो राजा इतना कंफ्यूज, डिसीजन ले नहीं सकता है, उसके ऊपर से जो उसका एडवाइज़र है वो भी बहुत ही हाई फाई क्लास के, भाई भगवान के भरोसे चल रही है पूरी सरकार। तो एडवाइज़र ने क्या कहा? अरे राजा साहब एक काम करो, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला लो, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा दोगे तो अपने आप पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, ओके ठीक है, आपके खजाने में पैसा आ जाएगा, ट्रेजरी में पैसा आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है वो लास्ट टाइम बुलाई गई है 1614 में, एंड अब बुलाई जा रही है 1789 में। अप्रॉक्सीमेटली 175 ईयर्स के बाद पता नहीं लुई 16 को क्या सूझा, इसने स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है वो बुला ली, ठीक है। ये मीटिंग कब हुई? 5 मई 1789 को हुई और सारे जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ के उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए, ओके। अब ये मीटिंग जब हुई तो मीटिंग होने के बाद क्या हुआ? थर्ड स्टेट जो है उसने अपना डिमांड रखा कि हम टैक्स वैक्स बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग पे कर देंगे, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, द गवर्नमेंट नीड्स टू change itself, the monarch needs to change his way, the way he rules. Now he needs to agree to the constitutional monarchy, okay, and the tax should also be paid by clergy and nobility. This is what the third state wanted, and now on this point the voting has to be done, okay. तो अभी इसके लिए क्या करना है? ये जो आपकी डिमांड है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वोट करना है, ओके। तो भैया वोटिंग जो है वो कंडक्ट हुआ। वोटिंग वॉज कंडक्टेड बाय द स्टेट, ईच स्टेट हैज़ गॉट 1 वोट। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो है वो तो अब ब्लॉक की तरह एक्ट करेगी। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये दोनों अपना यूनियन बना लेंगे, क्योंकि सारे स्टेट के पास क्या है? 1 वोट का राइट है। तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू कोलैबोरेट, जैसा कि अलायंसेस में होता है, राइट, कोएलिशन गवर्नमेंट में जैसा होता है। तो ये लोग हमेशा डेफिनेटली क्या करेंगे? आप बोल रहे हो फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट को टैक्स देना चाहिए, तो ये तो वोट आउट करेंगे ना। दे आर नॉट गोइंग टू वोट इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, दे आर ऑलवेज गोइंग टू वोट अगेंस्ट दिस टर्म। नाउ इन सच केस थर्ड स्टेट ऑल्सो डिमांडेड द थर्ड थिंग, दैट द वोटिंग राइट शुड बी फॉर 1 person 1 vote। इस तरीके से 600 लोगों का जो वोट है थर्ड स्टेट का, हर पर्सन को एक वोट मिलेगा, तो डेफिनेटली थोड़े चांसेस हैं कि उनकी बात मानी जा सके, ठीक है। या तो 50-50 सिचुएशन होता, ओके। तो ये बात हो गई कि जब वोटिंग हुआ तो फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट वर्सेस थर्ड स्टेट वाला सिनारियो सामने आता है, ठीक है। एक्चुअली में स्टेट्स जनरल की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। इट रिजल्टेड इनटू अ डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन क्या होती है? जब किसी भी डिस्कशन का कोई आउटकम नहीं आता है, ठीक है। तो एक डेडलॉक सिचुएशन आ गई। तो ये थर्ड स्टेट की सिटिंग अरेंजमेंट थी, थोड़ी ह्यूमिलिएटिंग अरेंजमेंट थी। यहाँ पे वाइट ड्रेसेस में आपको लोग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेट के लोग दिख रहे हैं, दीज आर द पीपल ऑफ सेकेंड स्टेट। और थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे खड़ा कर रखा है। तो बेसिकली उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, उनसे टैक्सेस भी लिया जा रहा था, और उनको वोटिंग राइट के लिए दो दे वर 600 इन नंबर, स्टिल दे वर ग्रांटेड जस्ट 1 vote, विच वॉज रियली यू कैन से अनफेयर, ठीक है। बहुत ही अनफेयर काम चल रहा था। कहानी जो है अभी तक की ऐसी चल रही है कि भैया लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और उनको समझ आ रहा है कि हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम, बिल्कुल खुलेआम,
हाँ, खुलेआम इनजस्टिस कर रहे हो तो भैया रेवोल्यूशन तो होगा ना। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेट जो है वो डिनाई कर देता है स्टेट्स जनरल की मीटिंग से। दे जस्ट वर्कड आउट। ओके, 5 मई 1789 की मीटिंग में कुछ नहीं नतीजा निकला, एंड देन दे ऑल असेंबल्ड इन द टेनिस कोर्ट। एक्चुअली देखो, इसके पीछे भी एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ये जो थर्ड स्टेट के हमारे लोग थे ना, ये एक्चुअली पहले गए थे फ्रांस का जो म्यूजियम था वहाँ पे राजा से परमिशन लेकर के मीटिंग करने गए थे, लेकिन राजा ने मीटिंग करने की वहाँ पे परमिशन नहीं दी, तो इन्होंने अगल बगल में कहीं पे भी टेनिस कोर्ट ढूंढा, वहाँ पर जा करके असेंबल हुए और उन्होंने स्वेयर किया दैट वी आर नॉट गोइंग टू मूव अनलेस एंड अनटिल वी फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर फ्रांस। And this whole tennis court meeting was being led by Mirabeau and Abbassius, who was one of the person was a Nobel from the Nobel Society, and Abbassius was a priest, and they both actually led the whole tennis court thing in a very good way. यहाँ पर ये जो सेंटर में आपको पर्सन दिख रहे हैं ये बैले हैं जो कि प्रेसिडेंट थे। ओके, ये जो पिक्चर है एक्चुअली में टेनिस कोर्ट ओथ को दिखाया गया है, लेकिन एक सार्कास्टिक पिक्चर है। ठीक है, कभी भी कोई स्पीच देता है तो अपने जनता की तरफ पीठ नहीं दिखाता है। ठीक है, वो जनता को फेस करके मीटिंग देता है, दिखा लेता है। बट यहाँ पे फोटो ऐसा क्यों बनाया गया है? द ओरेटर, द स्पीकर इज बेसिकली नॉट फेसिंग द क्राउड। वाई सो? वी विल स्टडी इन द कमिंग स्लाइड्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइट कपड़े में जो हैं ये फादर हैं, ये प्रीस्ट हैं। सो दिस इज बेसिकली एबेसियस, एंड ये जो पर्सन है जिसने ऐसे अजीब तरह के जूते पहने हुए हैं ये कौन है? ये है आपका एबेसियस, सॉरी मीराबू। ठीक है, तो मीरा भी है, ये दोनों लीड कर रहे थे। So Mirabeau basically gave very powerful speeches. On the other hand, Abbassius wrote a pamphlet, okay, which was named what is third state. Third state है क्या? ये पूरा Abbassius ने बताया। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को क्या नेम कर दिया? नेशनल असेंबली। दे नेम्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। और उन्होंने लुई 16 जो है उन्होंने क्या कहा? थर्ड स्टेट को बिल्कुल मीटिंग से बाहर निकाल दिया और बोला कि भाई तुम मीटिंग नहीं कर सकते हो। फाइनली बच्चों, जून 23 को लुई 16 रिलेंटेड, एंड लुई 16 ने बोला कि भाई नेशनल असेंबली जो है वोट कर सकती है और अपना गवर्नमेंट वगैरह बना सकती है, जो करना है तुम करो। ठीक है, अब इसी टाइम में क्या होता है बच्चों, ये हम कब की बात कर रहे हैं? 20 जून को क्या हुआ? हमारा टेनिस कोर्ट ओथ हो गया। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ, TCO। ओके, अब आप क्या देखते हो? 14 जुलाई को सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल जाती है। नेशनल असेंबली जो था वो बिजी था वर्सेल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था, क्योंकि राजा ने 23 जून को क्या बोला? ठीक है भाई, नेशनल असेंबली आ जाओ, आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, देख लो, मैं अग्री कर जाऊंगा। ठीक है, ही अग्रीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और वर्सेल्स गए, क्योंकि राजा कहाँ रहता था? वर्सेल्स में रहता था। सारा का सारा जो नेशनल असेंबली है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उन्होंने ही अपने आप को क्या नाम रख दिया है? नेशनल असेंबली। सो दे वेंट टू वर्सेल्स, ओके, फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड पेरिस में कुछ अलग ही चीज़ हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पेरिस और वर्सेल्स जो है वो काफ़ी दूर नहीं है, दे आर जस्ट 13 माइल्स अवे। 13 माइल्स इज समवट लाइक अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स अवे। ओके, तो पेरिस के अंदर बहुत ठंड का टाइम चल रहा है, 1789। लोगों के पास ब्रेड के पैसे नहीं हैं। एक वीक की सैलरी देने के बाद आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड मिल पा रहा है, एक पैकेट ऑफ ब्रेड मिल पा रहा है। लोगों ने गुस्से में आकर के बैस्टाइल को स्टॉर्म कर दिया, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे ही बैस्टाइल को स्टॉर्म किया ना, राजा अब तो डर गया। लुई 16 जो है वो डर गया। ठीक है, नाउ किड्स, बैस्टाइल जो हमारा फोर्ट है आज के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रांस के अंदर, बट आई थॉट टू शेयर दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट विद यू। ओके, ये हमारी पेरिस का ही मेन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे पहले बैस्टाइल था, वहाँ पे अब पूरा फुल फ्लेज मार्केट है। और फ्रेंच नेटवर्क जो कि एक फ्रांस की कोई मीडिया चैनल है, उसने क्या किया है, उसने एक बार लेजर शोज़ होते हैं, लाइट शोज़ होते हैं, उसके थ्रू फ्रांस का जो बैस्टाइल प्रिजन था पेरिस में, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। वो लगभग ऐसा ही बना हुआ होगा पुराने ज़माने के अंदर। ठीक है,
and this is also called July pillar. And please don't get confused with this July pillar with the July 14 July 17 sorry yes 14 July 1789. इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्चुअली ये जुलाई रेवोल्यूशन जो 1848 में हुआ था उसकी बात की जा रही है, ठीक है। नहीं सॉरी 1830 में जो हुआ था, बाद में भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं फ्रांस के अंदर, ये उसका सिंबल है, 1830 वाले रेवोल्यूशन का सिंबल है, ठीक है। तो आज के टाइम पर आपको बैस्टाइल देखने को तो नहीं मिलेगा, लोगों ने तोड़ दिया था, लेकिन उसके रिमेन्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। लाइक यू कैन सी अ पीस ऑफ बैस्टाइल फोर्ट्रेस फाउंडेशन ओवर हियर, ठीक है, मेट्रो के एक स्टेशन में। ऐसे ही ये मुराल पेंटिंग्स आपको स्टेशन के ऊपर दिखती है बैस्टाइल की, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, पेरिस के अंदर जो है बैस्टाइल प्रिजन को स्टॉर्म कर दिया, वहाँ पे अपराइजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द फ्रांस, एक्चुअली में पेरिस में जैसे ही विद्रोह हुआ, पूरे फ्रांस में ये विद्रोह जो है वो आग की तरह फैल गया, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट फियर, ठीक है। अब विद्रोह जब फैलेगा तो लोगों के अंदर थोड़ा, कॉमन पीपल जो हैं वो डर गए कि भाई अब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक्शन किया है तो रिएक्शन तो होगा ना यार, ठीक है। तो नोबल्स को अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों ने फ्यूडल ड्यूज वगैरह जो हैं वो सब रिकॉर्ड जो हैं वो सब जलाने लग गए। ऐसे में जो लॉर्ड्स थे, मतलब जो नोबल्स थे, उन्होंने भी क्या किया, दे ऑल्सो हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, डाकुओं को उन्होंने हायर किया और बोला जाओ जा करके सारे ये थर्ड स्टेट के जो पेजेंट्स वगैरह उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन चल रहा था। पेजेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होज पिच फोक्स, मतलब हथियार उठा लिए और जा करके बड़े बड़े जो महल थे राजाओं के उसको अटैक करने लग गए। मेनी नोबल्स फ्लेड देयर मैनोज, फ्लेड देयर चैट्यूज, बहुत सारे नोबल्स हैं वो डर के भाग गए, कहीं और जा करके सेटल होने लग गए, ठीक है। ये सबको देख करके लुई 16 जो है अब उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे बस की नहीं है कोई भी बात, ठीक है। नाउ द सिचुएशन इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल, सो ही वॉज फोर्स टू होस्ट द न्यू ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस, विच वॉज अगेन वही रेड ब्लू एंड वाइट कलर का जो इनका फ्लैग है वो होस्ट कर देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा फियर था, जो ये पूरा का पूरा डर का माहौल था, और जो नोबेल्स भी डरे हुए थे, पेजेंट भी डरे हुए थे, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे वायलेंटली जो अटैक कर रहे थे, ये कब तक चला, 20 जुलाई से 6 अगस्त 1789 तक, ठीक है बच्चों। सो द ग्रेट फियर वॉज द जनरल पैनिक टुक प्लेस बिटवीन 22 जुलाई एंड 6 अगस्त। तो ये पूरा का पूरा जुलाई बैस्टाइल प्रिजन को स्टॉर्म करने के बाद जो एक पैनिक था उसी को ग्रेट फियर कहा गया है। इस पे बेस्ड आपका ये एक मैप है जो कि ज़रूर आता है बच्चों, इसमें मोस्टली पेरिस जो है बैस्टाइल प्रिजन मार्क करने आता है, बैस्टाइल वॉज इन पेरिस, ये मार्क करने आता है। एंड देन यहाँ पे नैंटेज है एंड बॉर्डियोग्स है, ये दो जगह मार्क करने आती है। दीज टू प्लेसेस वर फेमस फॉर स्लेव ट्रेड, ओके। तो 4 अगस्त 1789 को फाइनली असेंबली जो हमारी नेशनल असेंबली है उसने एक डिक्री पास की, एक टेम्पररी लॉ पास किया, और जितने भी पुराने लॉज थे वो सबको अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम इज़ लाइक द ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, कि ज़मीन जो है पहले वो सिर्फ चर्च और नोबेल्स के पास ही होती थी, किसी भी लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी, ठीक है। येस आई नो दिस इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग एंड सरप्राइजिंग बट दिस इज़ राइट, ओके। तो फ्यूडल सिस्टम जो है बच्चों वो आप क्या देखते हो कि जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया, ज़मींदारी जो है वो ख़त्म कर दी गई। जो क्लर्जी थे उनके पास भी टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स था। क्लर्जी जो है वो टीदे कलेक्ट करता था, और जो हमारे फ्यूडल स्टेट्स हैं, जो नोबिलिटीज़ हैं, वो टैली करके एक टैक्स जो है वो कलेक्ट करता था। ये सब टैक्सेस अबॉलिश कर दिए गए। चर्च के अंडर में जो भी ज़मीन थी वो नेशनल असेंबली ने ले ली, और उससे 2 बिलियन लिवर जो है के वर्थ का पूरा प्रॉपर्टी जो है वो उनके पास आ गया, ठीक है। दे एक्वायर्ड द एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर। इतना सारा पैसा जो है अब जो नई न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है उसके पास आ गया, ठीक है। सो नाउ ऑन 20th August, so you can see on 4th August 1789 only all this happened, and France became the constitutional monarchy. अब जो मोनार्की हमारे पास आई है 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके।
तो यहाँ पे 3 बॉडीज थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक्चुअली यहीं से अभी की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका आइडिया कहाँ से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है बच्चों, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, दे विल मेक लॉ एज द नेम सजेस्ट, ये तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया है यार। एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, दे विल इम्प्लीमेंट लॉ। एंड माय डियर किड्स, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी इज गोइंग टू पनिश द ऑफेंडर्स, ऐसा ही होगा। अब देखो क्या हुआ, नेशनल असेंबली जो है, लेजिस्लेचर का जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो नेशनल असेंबली है, जिसमें 745 मेंबर्स हैं। अब ये जो लोग हैं ये वोट करके आएंगे इलेक्टर्स के थ्रू। इलेक्टर्स कौन होंगे, वो लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, दे वर इन द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। वोट कौन करेगा, एक्टिव सिटीजन। नाउ हु आर एक्टिव सिटीजन, जो 25 ईयर्स के अबव होंगे और कितना टैक्स पे करते होंगे, एक नॉर्मल वर्कर की 3 दिन की जो सैलरी होती है उतना टैक्स अगर पे करते हो तो यू आर एलिजिबल एज एन एक्टिव सिटीजन, यू हैव गॉट द वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट, ठीक है। देखो जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे ना, वही नेशनल असेंबली के मोस्टली मेंबर्स थे। उन्होंने ये जो सरकार बनाई या जो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन किया, उसके अंदर इनका ये मानना था कि अच्छे लोग जो हैं वही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने वोटिंग राइट सबको नहीं दिया, उन्होंने वोटिंग राइट सिर्फ 25 ईयर्स से अबव मेल्स को दिया, वो भी ऐसे मेल्स जो टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक 2 ग्रुप्स में वापस से सोसाइटी बट गई है, पैसिव सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन, ठीक है। पैसिव सिटीजन कौन है, 25 ईयर्स से वो सारे लोग, 25 ईयर्स से कम वाले जितने भी मेल्स हैं, या वो लोग जो अच्छे टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, सारी फीमेल्स एंड ऑल द चिल्ड्रन व पैसिव सिटीजन, ठीक है। So this system was not that democratic. It has got some democratic feature and some undemocratic feature as well. जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया गया 1791 में, उसको मोस्टली आप क्या देखते हो, सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता था। क्यों, क्योंकि पीपल काफ़ी इलिटरेट थे। एंड सेम डिक्लेरेशन जो है ना, इसी टाइप की फिगर है, ये ब्रिटेन का डिक्लेरेशन था, उसी को कॉपी किया गया है ऑलमोस्ट, और फ्रांस का भी ऐसा ही डिक्लेरेशन जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, आप लोग क्या देखते हो, इसको अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। वाई, बिकॉज लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई, तो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। ये पूरा का पूरा जो डिक्लेरेशन है उसको स्टोन पे लिखा गया है। वाई, बिकॉज स्टोन पे जो चीज़ लिख दी वो मिटेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक आई है, इसको नॉलेज, आई ऑफ नॉलेज कहा गया है। ये जो लेडी है ये लॉ को डिनोट कर रही है, और ये जो लेडी है ये हमारी फ्रांस की माता है, मैरी एन, ठीक है। फ्रांस के कलर्स जिसने पहने हुए हैं वाइट, रेड एंड ब्लू, और हाथ में जो चेन है उसको ब्रोकन चेन को लिया हुआ है, मतलब लोग जो हैं अब वो आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, उनके पास राइट्स है। पहले जो लोग थे वो सब्जेक्ट्स थे, नाउ दे हैव बिकम सिटीजन्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट, प्रजा और नागरिक के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो लॉ है उसको बहुत एंजल फिगर दिखाया गया है। वाई, बिकॉज लॉ जो है वो बहुत ही हमेशा एंजल की तरह एक्ट करती है। सही गलत जो है वो उसमें हमेशा अंतर बताती है, जो गलत कर रहा है उसको पनिश करती है, ठीक है, और जो सही कर रहा है उसको सपोर्ट कर रही है। एंड नाउ दिस एलिगरी ऑफ लॉ इज होल्डिंग द रॉयल स्केप्टर, विच मीन्स कि राजा भी जो है अब वो लॉ के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पर एक बंडल ऑफ स्टिक है जो कि यूनिटी को दिखाता है, रीजियन कैप है जो कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी को दिखाता है, और यहाँ पर एक सर्कल है जिसका स्नेक है विच इज़ बाइटिंग द टेल, बाइटिंग इट्स टेल, विच शोज इटर्निटी, मतलब ये जो चीज़ें लिख दी गई हैं ये इटर्नल है, हमेशा रहेगी, अमर रहेगी, ठीक है। तो ये था राइट्स। अब हमारे सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स भी है, एंड दे हैव but certain right declaration like fundamental rights they have got, okay। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ डेमोक्रेटिक फीचर्स, अनडेमोक्रेटिक फीचर्स हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप याद रखना। फ्रांस जो है वो एक लिमिटेड मोनार्की बन गई है, राजा जो है वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है, सारे लॉज जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करी है, फ्यूडलिज्म जो है वो हटा दिया गया है। दीज आर ऑल द डेमोक्रेटिक फीचर्स, ओके। नाउ व्हाट इज अनडेमोक्रेटिक फीचर, अनडेमोक्रेटिक फीचर है बच्चों, वोटिंग वाज लिमिटेड टू द टैक्स पेयर्स,
ओके। एंड ऑफिसेज वर रिजर्व्ड फॉर द प्रॉपर्टी ओनर्स। जो भी ऑफिसेज में काम करेंगे, नई सरकार बनी है भाई, वो राइट टू वर्क दे रही है लोगों को, लेकिन काम कौन करेगा? सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स। द न्यू गवर्नमेंट बिकेम नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो नई गवर्नमेंट बनी है उसका नाम क्या रख दिया गया है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट जो गवर्नमेंट बनी है आफ्टर मोनार्की, वो गवर्नमेंट का नाम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। नेशनल असेंबली से कंफ्यूज मत होना, नेशनल असेंबली एक्चुअली में थर्ड स्टेट का ही रीनेमिंग किया गया था, जब वो लोग वॉकआउट कर देते हैं स्टेट जनरल की मीटिंग से। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये चीज़। नाउ ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली अभी हमारे पास बनी है 1791 से 1792 की, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? किंग लुई हेटेड न्यू गवर्नमेंट्स रेगुलेशन ऑफ चर्च एंड हिज लॉस ऑफ एब्सोल्यूट पावर। ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। क्यों? तुमने उससे सारी पावर छीन ली है। ठीक है, सो रॉयल फैमिली सॉट हेल्प फ्रॉम ऑस्ट्रिया। राजा कुछ तो रिएक्शन करेगा ना यार, उसकी सारी पावर ले लोगे तो राजा ने क्या किया? ऑस्ट्रिया से हेल्प सीख करने की कोशिश की। In June 1791, they were caught up trying to escape to Austria. Nobles who fled to revolution lived abroad as emigres. They hoped that with foreign help, old regime could be restored in France. जो नोबेल्स हैं वो भी राजा का साथ दे रहे थे, उनको लग रहा था यार हमारी पावर्स हमारे पास वापस आ जाएगी। चर्च ऑफिशियल्स को भी उनके वापस सारी ज़मीन चाहिए थी, राइट्स चाहिए थी, प्रिविलेजेस चाहिए थी। ऐसे में क्या होने शुरू हो गया? एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होनी शुरू हो गई। राजा भी खुश नहीं है। देखो, जब जब सरकार बनेगी और जनता खुश नहीं होगी तो सरकार ऑब्वियसली चेंज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोबिलिटी, किंग इज नॉट हैप्पी, नोबिलिटी इज नॉट हैप्पी, क्लर्जी इज नॉट हैप्पी, एंड द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट हु डिड नॉट गेट द राइट टू वोट, हु डिड नॉट गेट एनी प्रिविलेजेस, उनको वो भी बड़े नाखुश हैं। तो ऐसे में क्या होना शुरू हो गया? पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होनी शुरू हो गई। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट आएगी पॉलिटिकल पार्टीज आएगी ही आएगी। आपने देखा होगा इंडिया में भी 1858 में गवर्नमेंट आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1885 में क्या आ जाता है? कांग्रेस। 1906 में मुस्लिम लीग। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट विल कम, पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑब्वियसली स्प्रिंग अप इन दोज एरियाज। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्टिव पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो है जैकोबिन्स। दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स सैंसकुलॉट्स। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट यूज टू वेयर दोज टाइट, यहाँ पर एक जो नी ब्रिचेज होते हैं वो लोग नहीं पहनते थे। ठीक है, वाई दे डिड सो? दे वॉन्टेड टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैशन ओनली दे डिड कि अच्छा ठीक है, हमें ना अलग दिखना है बाकी सारे लोगों से, नोबिलिटी से, क्लर्जी से। दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड वेयरिंग दिस स्ट्राइप्ड क्लोथ्स विच द डॉक वर्कर्स यूज टू वेयर। ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया। अब जो ये नई गवर्नमेंट बनी है उसका ऑपोजिशन होने लग गया। ठीक है, Louis XVI had signed the constitution, but also he entered into the secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of neighboring countries were worried by the developments in France, and they made plans to put down their events. The National Assembly voted to declare war against Austria and Prussia. तो अब क्या हुआ? वॉर जो है वो हो गया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में फ्रांस का। जब लड़ाई होगी तो और मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे ही रिसोर्सेस कम हैं। अभी अभी तो तुम एक क्राइसिस से बाहर आए हो, अभी वॉर में घुसोगे तो डेफिनेटली जो कंट्री है उसका सिचुएशन और वर्स होगा। ओके, सो दिस revolutionary war brought losses and difficulties to the people. Members of Jacobean Club were from the less prosperous section of society, which includes small shopkeepers. ऐसा ही हुआ, और अगस्त 10 को क्या किया लोगों ने? पैलेस ऑफ ट्यूरिलिस जो था उसको स्टॉर्म कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा जो है वो सीक्रेट अलायंस में चला गया प्रूशिया ऑस्ट्रिया के साथ। लोगों को गुस्सा आया, राजा ने कोई फेथफुलनेस, कोई लॉयलिटी नहीं दिखाई ये वाली गवर्नमेंट के तरफ, लेजिस्लेटिव असेंबली वाली गवर्नमेंट के तरफ, तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ना यार। ठीक है, तो लेटर द असेंबली व्हाट दे वोटेड कि अब भैया क्या करना है? राजा ने दगाबाजी की है, राजा को प्रिजन करना है। ठीक है, सो पीपल वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली एंड अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड। जब भी इलेक्शन होगा तो एक नया गवर्नमेंट आएगा। सो द न्यू गवर्नमेंट केम, जिसका नाम क्या रखा गया? कन्वेंशन। ठीक है, और अब ये कन्वेंशन के अंदर क्या किया गया बच्चों? अब जो हमारा लीडर होगा वो एक कोई इंडिविजुअल होगा। ठीक है, और उसी को सारे वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑन 21 September 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक।
नाउ व्हाट इज अ रिपब्लिक? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे हेड जो है वो कौन होता है? हेड पब्लिक का इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है, या फिर यूके हम जिसको कहते हैं, वो अभी भी किंगडम ही है। वाई? क्योंकि वहाँ का जो हेड है वो अभी भी रॉयल फैमिली ही चलती आ रही है हेड, इसीलिए वो रिपब्लिक नहीं है, वो अभी भी किंगडम है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। वाई? बिकॉज हमारे जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सब हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रांस में भी यही रूल आ गया कि अब क्या किया जाएगा, फ्रांस रिपब्लिक है, उसका हेड कौन होगा? कन्वेंशन का जो हेड होगा वो जनता चूज करेगी। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो बच्चों, 21 ईयर्स से ज़्यादा जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट दे दी गई, और कन्वेंशन का एक हेड हमें चूज करना था, ठीक है। तो ये तो चूज करेंगे, बट उसके पहले राजा को जो इम्प्रिजन किया उसको तो पहले रफा दफा करें। तो लुई 16 को क्या किया गया? गिलॉटिन कर दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन। ट्रिजन का मतलब होता है देशद्रोह, देशद्रोह का चार्ज लगा करके, ऑन जनवरी 21, 1793, ठीक है। और जो हमारा फ्रांस है वो रिपब्लिक बन जाता है। इलेक्शंस होते हैं कन्वेंशन के, और फाइनली कौन राजा बनता है बच्चों? राजा बनता है आपका द ग्रेट रॉब्सपियर, ठीक है। रॉब्सपियर राजा बन जाता है। और अब हम देखेंगे क्या होता है। तो जो नई गवर्नमेंट है वो कब से कब तक रूल करती है? 1793 से 1794 तक। रॉब्सपियर के रूल को रेजिम ऑफ टेरर या रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज रॉब्सपियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है। वो बहुत ही क्रूअल टाइप का राजा बना। आप देखो, रॉब्सपियर जो है ना, वो तो इनिशियली थर्ड स्टेट की जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी उसमें थर्ड स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्ग ओरेटर था, लेकिन जब उसको पावर दी गई ना तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लोगों को, ठीक है। लोगों को फ्रीडम पसंद है, लेकिन लोगों को कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं पसंद आता है, ठीक है। आप डिसिप्लिन ज़्यादा करने की कोशिश करोगे ना तो वो बच्चा हमेशा आपसे नफरत करेगा। घर में ऐसा ही होता है ना, जब पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, यू टेंड टू रिवॉल्ट। तुमको लगता है मैं और क्यों ना ये करूँ, मम्मी ने मना किया है, डेफिनेटली करना है, ठीक है। ये होता है, सबका ह्यूमन क्वालिटी है, ओके। तो यहाँ पे भी यही हुआ। रॉब्सपियर जो है वो अच्छे कॉज के लिए क्या कर रहा था, ज़बरदस्ती लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। ऐसे में जो लोग थे, उसकी खुद की पार्टी के लोग भी मॉडरेशन डिमांड कर रहे थे, ओके। एंड बहुत सारे लोगों को गिलॉटिन कर दिया। गिलॉटिन क्या है मैं आगे बताऊंगी। पेजेंट्स जो है उनको बोला गया कि तुमको ट्रांसपोर्ट करना है अपना ग्रेन मार्केट के अंदर, मार्केट में फिक्स्ड प्राइस पे तुमको क्या करना है, अपना अनाज बेचना है। एक इक्वालिटी ब्रेड इंट्रोड्यूस किया गया, सबको यही ब्रेड खानी है। हर घर के लिए राशन फिक्स्ड कर दिया गया कि भैया 5 मेंबर की फैमिली है, इतना ही राशन मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें की गई। जो टाइटल्स हैं वो हटा दिए गए, सर मैडम वाले सबको सिटोयेन कहा जाने लगा, दैट एवरीवन विल बी एड्रेस्ड एज सिटीजन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लोगों को नहीं पसंद आया, ओके। द मेन कॉज फॉर द फॉल ऑफ रॉब्सपियर वॉज गिलॉटिन, ठीक है। अब गिलॉटिन क्या है बच्चों? तो in 1789 a French physician and member of National Assembly named Joseph Ignace Guillotin was instrumental in passing a bill that required all sentences of death to be carried out by means of a machine. It was introduced in 1792. तो 1789 से ही ये जो पर्सन है ना वो डिमांड कर रहा था कि एक पेन फ्री सेंटेंस होना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। तो गिलॉटिन जो है उसी का नतीजा था। अब ये जो मशीन आई, रॉब्सपियर को मज़ा आने लग गया कि भैया अब तो मैं सुधार के रहूँगा लोगों को। अगर लोग अपनी मर्जी से सुधरे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही सुधार देगी जनता, ठीक है। यही मैसेज मिला रॉब्सपियर को। रॉब्सपियर जो है वो दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा था, ओके। एंड फाइनली द वन कमिटी वॉज फॉर्म्ड एंड दे ऑल्सो एग्जीक्यूटेड रॉब्सपियर। रॉब्सपियर को खुद ही क्या कर दिया गया, गिलॉटिन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। अब ऑब्वियसली रॉब्सपियर गया है तो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा। सो नाउ द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच केम वॉज कॉल्ड डायरेक्टरी। जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर का एग्जीक्यूशन हुआ ना बेटा, तो जो थर्ड स्टेट था ना, जो थर्ड स्टेट के जैकोबिन्स क्लब के लोग थे या जो कॉमन लोग थे,
उन लोगों की जो एक तरीके से पावर थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गई, एंड अगेन द गवर्नमेंट केम इनटू द हैंड्स ऑफ वेल्दियर मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो ये वेल्दियर मिडिल क्लासेस है, दे एक्चुअली सीज द पावर, उन्होंने पूरा का पूरा पावर जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ओके, एंड अब जो हमारा डायरेक्टरी है, वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके अंदर जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड लोग हैं उन सबसे वोटिंग राइट्स ले लिया गया। अगर लोगों ने एक बार डेमोक्रेसी चख लिया है ना, तो उनका मन करेगा बार बार रिवॉल्ट करने का। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है, लोग रिवॉल्ट करते हैं क्या। बट अभी फिलहाल क्या है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कि देयर विल बी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड देयर विल बी 1 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी एंड एक डायरेक्टरी करके एक ग्रुप होगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब हमने कन्वेंशन में एक सिंगल हेड को ढूंढा था, चूज किया था, इतना पावरफुल हो गया था, ही वॉज लिटरली रूलिंग लाइक अ डिक्टेटर। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसलिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, यहाँ पे 5 मेंबर है, यहाँ पे 5 मेंबर है, एक की जगह 10 लोगों में पावर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही लोग जो हैं वो किसको अपॉइंट करते थे, डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे, लेकिन डायरेक्टरी से भी इनकी कभी बनती नहीं थी, ये बार बार डायरेक्टरी को डिसमिस करते रहते थे। कभी भी कोई डायरेक्टरी आया, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, डिसमिस कर दो, जाओ। ठीक है, बट स्टिल जैसे तैसे घींच तीच के ये वाली जो गवर्नमेंट है 1795 से 1799 तक चली, और 1799 में हमारे आते हैं द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, ही वॉज द मिलिट्री हेड, was the head of the military of France, and he has seen that there is a lot of weakness in this directory government, so I would definitely take advantage of this weakness. This is what Napoleon thought. Okay, तो नेपोलियन ने मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाया और नया टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो शुरू किया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंज्यूलेट। ठीक है, so the consulate was the top level government of France from the fall of directory in the coup of Brumaire on November 10, 1799। 1799 को एक कूप किया गया, मिलिट्री कूप, और कंज्यूलेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कंज्यूलेट होंगे और वही सारे डिसीजंस लेंगे, जिसमें हमारे कंज्यूलेट्स थे नेपोलियन बोनापार्ट, देन जे कैम्पकास सेकंड कंज्यूल, एंड द चार्ल्स फ्रैंकोइस वाज द थर्ड कंज्यूल। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट चली 1799 से 1804 तक, और 1804 में नेपोलियन अपना एक सिविल कोड लेकर के आता है, बहुत फेमस है। ठीक है, आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे इसके बारे में, चैप्टर 1 में। तो सिविल कोड लेकर आता है और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देता है, ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द फ्रांस। ओके, now when he introduced the civil code, na people were really flattered about him, they actually started treating him like a hero। ठीक है, उसको बिल्कुल हीरो की तरह ट्रीट करने लग गए लोग, और नेपोलियन कोड जो है वो लोगों ने ऐसा देखना शुरू कर दिया कि यार ये तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो हमारे लेकर आएगा। सिविल कोड क्या था ये आप क्लास 10 में पढ़ोगे, इसलिए अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। ओके, लेकिन हाँ, नेपोलियन जो है वो 1804 से 1815 तक उसने बहुत अच्छे से रूल किया, एंड फाइनली इन 1815 ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू बाय द ग्रुप ऑफ रॉयल पावर्स, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, they all joined hands together against नेपोलियन, और सबने मिल करके नेपोलियन को 1815 में हरा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन केम टू एन एंड। 1815 में वापस से क्या हुआ बच्चों, 1815 में वापस से मोनार्की रीस्टोर कर दी, और लुई 18 जो है उसको राजा बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आकर के ख़त्म हो जाता है, एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड गॉट मोर फेजेस देन मून। एक जो मून के अलग अलग फेजेस होते हैं ना, ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे फेजेस हैं। सबसे पहले 1789 से 91 वाला जो फेज़ है नेशनल असेंबली या मॉडरेट फेज़ है। थर्ड स्टेट जो है वो अपने आप को क्या बोल देता है, they renamed themselves as the National Assembly। then you already know 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला फेज चलता है जब गवर्नमेंट अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली रीनेम कर देती है। 1793 से 94 कन्वेंशन,
जिसको रैडिकल फेज भी माना जाता है. वाई? बिकॉज द मेथड ऑफ रॉबस्पियर वॉज वेरी रैडिकल, राइट. बहुत ही रैडिकल चेंजेस लाने की कोशिश की. इक्वालिटी, ब्रेड, सिटोयन, बहुत सारे चेंजेस. रैशनिंग करने लग गया वो सारे के सारे फूड्स का, ग्रेन्स का. लोगों को फोर्स करने लग गया कि मार्केट में ले जा करके सेम प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए इसको रैडिकल फेज कहा जाता है. देन द फोर्थ फेज वॉज द डायरेक्टरी रूल, जो 1795 से 99 तक चला. द कंज्यूलेट रूल विच लास्टेड फ्रॉम 1799 टू 1804, एंड ऑब्वियसली 1804 से 1815 नेपोलियन एरा. सो दिस इज द होल फेज एंड होल सिनारियो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आपका खत्म हो जाता है, लेकिन आपका चैप्टर खत्म नहीं होता भाइयों और बहनों. चैप्टर अभी और चलेगा. ठीक है. तो चैप्टर के अंदर आप देख रहे हो, आपके बुक के अंदर टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन. फीमेल्स ने क्या प्ले किया, कैसा रोल प्ले किया. सो फीमेल रियली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेवोल्यूशन. एक्चुअली दीज फीमेल्स वर नॉट वेरी वीक और वेरी सोफिस्टिकेटेड, फ्रेजाइल काइंड ऑफ पीपल. वहाँ पर जो फीमेल्स थी, दे वर वेरी टॉल, मस्क्यूलर. वाई? बिकॉज दे यूज टू डू रियली अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. फ्रांस आपको पता है सी से घिरा हुआ है. ठीक है. तो ये जो फीमेल्स थी मछुआरे का काम करती थी, तो काफ़ी हैवी बिल्ट वाली फीमेल्स थी, बहुत ही वोकल थी, पावरफुल थी. और 1789 में 5 अक्टूबर 1789 में ये लोग राजा को लेकर के आ जाती है वर्सेल्स से. कहाँ पे? पेरिस के अंदर. और पेरिस में पैलेस ऑफ ट्यूरिल्स में राजा को फोर्स कर देती हैं कि भैया तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम जनता से दूर वर्सेल्स में आराम कर रहे हो. वर्सेल्स वॉज बेटा पेरिस के अंदर, मतलब पूरे यूरोप के अंदर सबसे ग्रैंड अगर कोई पैलेस था किसी राजा का तो वो वर्सेल्स ही था. जबकि वहाँ पे कितने सारे एम्पायर्स थे यूरोप के अंदर. ठीक है. तो वर्सेल्स से उठा के ले आना इज़ अ वेरी बिग थिंग. ओके. तो राजा को फोर्स करके ये लोग लेकर आ जाते हैं. फीमेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. You will see that Declaration of Rights of Women was written by the Olympe de Gaugue. She was also one of the editors, न्यूज़पेपर वगैरह लिखती थी. और जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था, वैसा ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन्होंने लिखा. और किसको एड्रेस किया? मैरी एंटोनिएट को एड्रेस किया. तो फीमेल ने रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया. और रेवोल्यूशनरी रोल प्ले करने की वजह से वुमेन को कुछ राइट्स भी गारंटी किए गए. ठीक है. जैसे उनको कुछ राइट्स दिए गए, बट वो इसलिए था कि भैया, बट दीज वर डिजाइन फॉर द पर्पस अदर देन लिबरेटिंग द वुमेन. वुमेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी. वाई? बिकॉज बाय डूइंग सो वी कैन वीकन द फ्यूडल क्लासेस. जो फ्यूडल क्लास या नोबेलिटी के जो लोग हैं, अगर वो अपनी बेटियों को भी ज़मीन देना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली इनकी खुद की प्रॉपर्टी तो डिक्रीज होगी ना. तो ये एक एजेंडा था. डाइवोर्स जो है वो इजी बना दिया गया. वाई? सो दैट चर्च का कंट्रोल जो है इन सब रिचुअल्स पे कम हो जाए. एजेंडा के हिसाब से कुछ उनको राइट्स दिए गए, बट वोटिंग राइट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था वही नहीं एक्सटेंड किया गया वुमेन को. ओके. Now next is abolition of slavery. Now there's a question mark on this topic also, that whether these rights of Declaration of Right of Men should be extended to slaves also, or the Declaration of Rights of Men should be limited to only the natives of France. इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट था. ठीक है. तो कुछ लोग जो थे वो फेवर में थे कि भाई स्लेव्स जो हैं, जो बाहर से काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको भी ये राइट्स देनी चाहिए. ठीक है. स्लेवरी क्या था बेटा? एक्चुअली में 17th सेंचुरी के आसपास में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था. बेसिकली आप देखते हो कि वेस्ट इंडीज़, ये वाला जो पूरा जोन है अपना, कैरेबियन सी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको कैरेबियन सी कहा जाता है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस थे. ठीक है. लेकिन ये प्लांटेशन में एवरीबडी वाज नॉट विलिंग टू वर्क. लेकिन इंसान तो लगेंगे ना काम करने के लिए, बिकॉज प्लांटेशन इज़ अ वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. लोग बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं. ठीक है. तो ऐसे में क्या किया गया, अफ्रीका से और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से बहुत सारे लोगों को शिप में भर भर के लेकर आया जाता था और यहाँ पे एज अ स्लेव उनसे काम कराया जाता था. ऑन द अदर हैंड इन एरियाज से रॉ मटेरियल जो है वो यूरोप में जा रहा था. और यूरोप में सारी की सारी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बिकॉज यूरोप वाज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब एट दिस टाइम. सो इन दिस वे, और फिर मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वापस एशिया के मार्केट में बिकता था. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड विच वाज गोइंग ऑन. ओके. तो ये स्लेवरी के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो आप देखोगे कि आकर के बसे हुए हैं फ्रांस के अंदर. ठीक है.
So the slaves were packed tightly into the ships for 3-month-long voyage across the Atlantic and Caribbean and there to plantation owners. The National Assembly held long debates for the rights of men to be extended to all French subjects, but it did not pass any law fearing opposition of the businessmen. अब ये लोग जो है ना राइट देना चाहते, मतलब गवर्नमेंट जो है वो राइट देना चाह रही है हर सिटीजन को, बट दे आर ऑल्सो फियरफुल कि अगर हमने राइट दे दिया तो बिजनेसमैन जो है वो अपना सपोर्ट ना खींच लें. अगर सपोर्ट खींच लेंगे बच्चों तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. देखो गवर्नमेंट को हमेशा फंड करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. दैट इज़ वाई दे डोंट वांटेड टू बेसिकली टेक अ पंगा विद दीज बिजनेसमैन. ओके, so finally then but slavery was abolished in the year 1848. so ये हमारी स्टोरी है बच्चों. स्लेवरी भी जो है वो भी अबॉलिश हो गई. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वुमेन ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया. नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है. ठीक है, वो लिगेसी देता है वर्ल्ड को, एंड दैट लिगेसी वाज द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. These two are the most important legacies of French Revolution. ठीक है, ये जो आइडिया है फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है और उसके बाद यूरोप के सारी कंट्रीज़ में ये फैला. फिर यूरोपियंस ने कॉलोनी बनाई. जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाई वहाँ पे जब वो लोगों को फ्री किया, कॉलोनी को फ्रीडम दिया, तो ये आइडियाज़ कॉलोनीज़ में भी एक्सटेंड हुए. ठीक है, दैट इज़ वाई दिस होल फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गेव some really inspirational, or you can say so very big ideas which was so powerful that it could change the whole scenario of the nations across the world. तो इसलिए ये बहुत एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के भी दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स, दो इम्पॉर्टेंट लोग, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दे वर ऑल्सो टॉकिंग कि यार इंडिया में भी क्या होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो हटा देने चाहिए, गवर्नमेंट आनी चाहिए. बट एक्चुअली में हमारे यहाँ के राजा जो थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे. वो अपने प्रजा का ध्यान जो है बच्चों की तरह रखते थे. इसलिए हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए. लिबर्टी के लिए हमें फ़ाइट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हमें फ़ाइट करना चाहिए. ये दिमाग में हमारे कब आया, जब हम पे ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम परेशान थे ब्रिटिशर्स से, एंड एट द सेम टाइम वी वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज़ जो कि एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, रूट्स क्या है इसका, फ्रांस से है और पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हुआ है. So kids, this is all for today. I hope you have enjoyed the session and you have got a quick revision of this whole chapter. And if you have liked it, give a thumbs up to the video. And you can also comment in the comment box and let me know that which chapter you want to read next in the one chapter one day series. And RSYT code use कर लो अगर subscribe करना है तो. Bye bye. Thank you everyone.